أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے اگلی جو 13 آیتیں ہیں یہ منافقوں کے بارے میں ہیں۔ تو ہم ان میں منافقوں کی چالیں اور ان کے طریقہ کار اور ان کی ساری باتوں کو دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کے راستے بھی بتائیں گے۔ تو یہ آج ہم نے اس کی پہلی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، و اور من سے، ناس مین لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے من، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقولو کہتے ہیں، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن یقولو، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، و اور بالیوم اور دن آخر آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وما ہم، یہاں پر جو ما ہے وہ نیگیٹو میننگ دے رہا ہے، یعنی نہیں، نو، لا کا مطلب ہے۔ وما ہم، اور نہیں ہم وہ، بے مومنین ایمان والے، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یا ایمان لائے ہوئے ہیں، یا ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یعنی ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ گویا منافقین ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ان میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو نام ہے 3 چیزوں کا، کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور پھر جسم کے جو اعضاء ہیں ان پر اس بات کو، اسلام کو اپلائی کر دینا، تاکہ جسم کے ہر اعضاء کی حرکت جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائے، تبھی ایمان پورا ہوتا ہے نا۔ تو ایسا تو نہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے تو نہیں اقرار کرتے نا، دل سے تسبیح تو نہیں کرتے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، یعنی ویریفیکیشن نہیں کرتے، سرٹیفائی نہیں کرتے، دل ان کا تصدیق کرتا ہی نہیں ہے، بس زبان جو کہتی ہے بس کہتی ہے، اور دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ جبکہ ایمان کی شرط ہے نا، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، وہ قلب اس کی تصدیق نہیں کر رہا، تو دل جو ہے وہ نہیں مان رہا اور زبان کہہ رہی ہے، تو یہ ویسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کی شرط پوری ہو نہیں رہی، تو یہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ ایمان کے تقاضا پورا کر ہی نہیں رہے۔ اور کیا کرتے ہیں یہ، یخادعون اللہ، یخادعو فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، یہ ٹرائی کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، یہ تو دوسرے لفظوں میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والے ہیں، یعنی یہ کوشش کر رہے ہیں کیا، کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے نہیں ہے، وما، ما کا مطلب یہاں بھی نیگیٹو لا میں آتا ہے، وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دے رہے،
इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को, मगर अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशउरून और इसका ये शऊर नहीं रखते, इनका अक्ल मर गया है, इनको समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। असल में धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन वो शो करते हैं कि हम तो धोखा दूसरों को दे रहे हैं, ईमान वालों को, अल्लाह को। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अल्लाह ताला तो दिल पर देखता है ना बंदे की। फी कुलूबिहिम मरदुन, फी कुलूबिहिम इनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, फजादा बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, हम इनकी, हमुल्ला हो अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को, माराडा का मतलब बीमारी, फजादा हमुल्ला माराडा अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब जो बीमारी इनके दिलों में है, अल्लाह ताला उस बीमारी को और बढ़ा देता है। वालहुम और उनके लिए अजाबुन अलीमुम, उनके लिए अजाब है, अलीम का मतलब दर्दनाक। तो वालहुम उन और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्यों अजाब है? बिमा इस सबब से, कानू के ये थे, यकज़िबून झूठ बोलते, तो ये झूठ बोलते थे, इस वजह से इन पर अल्लाह का अजाब है। दोबारा आयतें पढ़ते हैं। वमिनन्नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान ले आए हैं। अल्लाह फरमाता है वो ईमान वाले नहीं हैं। युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, असल में वो धोखा अपने आप को दे रहे हैं। वमा यखदऊन, और धोखा वो नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशउरून, और इसकी उनको इसका शऊर ही नहीं है। फ़ी कुलूब मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादा मुल्ला हो मरदा, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। अब मुनाफिक की सबसे पहली निशानी जो है झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी इज़ा हद्दस कज़बा, कि पहले जब वो बात करे झूठ बोले। वाइज़ा वादा अखलफा, और जब वो वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसको पूरा ना करे। वाइज़ा तो मिना खाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें ख़यानत करे। तो ये मुनाफिक ऐसा होता है, यानी वो मुकर जाता है, झूठा हो जाता है, दिल में कुछ होता है, ज़बान पर कुछ होता है। और अब देखें ना, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ईमान जो है 2 चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ना इसमें, ज़बान से इकरार और दिल से उसकी तस्दीक। इकरार बिल्लिसान व तस्दीक बिल कल्ब। और कल्ब उनका तो तस्दीक ही नहीं कर रहा, ज़बान कह रही है कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन अंदर दिल तो मान नहीं रहा उसको, दिल उसकी तस्दीक ही नहीं कर रहा, क्योंकि तस्दीक बिल कल्ब हो ही नहीं रहा। अल्लाह जो है वो दिलों को देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह बंदे की शक्ल को नहीं देखता, ना सूरत को देखता है, ना उसकी खूबसूरती को देखता है, ना उसके ड्रेस को देखता है, किसी चीज़ को नहीं। अल्लाह देखता है तो उसके दिल की तरफ देखता है। तो दिल जो है, जब अल्लाह देखता है कि उस पर कितना ईमान है, ये पता तो जब जब चलता है ना कि जब जब दिल पर अल्लाह की निगाह पड़ती है कि इसमें ईमान है कि नहीं है। ईमान क्या होता है? दिल उसकी सर्टिफाई कर रहा है जो ज़बान इकरार कर रही है। अगर दिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है बंदा। तो वो झूठ क्या बोल रहा है? वो अल्लाह ताला देखता है, इसका दिल काला है, वो दिल ख़राब हो जाता है। इसी तरह आप गौर करें, हमें भी अपने दिल की इस्लाह करनी चाहिए कि जो हम बात करते हैं इस्लाम को, इस्लाम की हर हर बात जो हम ज़बान से करते हैं, दिल भी उसकी तस्दीक करे, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिल को देखता है। और जब दिल से बंदे का पता चलता है, अल्लाह ताला को नज़र आ जाता है कि ये बंदा सही मुसलमान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुश हो जाता है। तो अल्लाह को खुश रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने ईमान को रोज़ाना रिफ़्रेश किया करें, ईमान को तरोताज़ा किया करें, ईमान की खैर मनाया करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ईमान
अकायद की है। अकीदा और ईमान ठीक होगा तो फिर आमाल ठीक होंगे। आमाल बाद में बनते हैं, अकीदा ईमान पहले होता है। अब देखें, कुफार होते हैं, दूसरे लोग हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, दूसरे हैं, वो कहीं जल्जला आ जाए तो ये बड़ी मदद करते हैं, कहीं पे गरीब हों उनकी मदद भी कर देते हैं दूसरों की, लेकिन बड़े बड़े अच्छे काम भी कर लेते हैं। लेकिन क्या है, ईमान है नहीं, अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो फिर क्या हुआ कि अमाल जितने भी कर लेने कोई असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ईसाई के ईसाई रहेंगे, वो मुसलमान तो नहीं होंगे ना, और बख्शे तो नहीं जाएंगे। तो बख्शना अल्लाह ताला की तरफ से रहमत उस वक्त होती है जब ईमान बंदे में आता है, ईमान के बाद आमाल बनते हैं। तो ये अल्लाह ताला मुनाफिकों के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज़बान से तो इकरार करते हैं, जैसे अल्लाह ने फरमाया ना कि वमिनन नास मन यकूलो, कि वो कुछ लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, वो कहते हैं, यकूलो आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कहते हैं कि हम जो है अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन पर भी ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है। तो दिल पर देखा अल्लाह ताला ने, तो वो देखा कि है नहीं, दिल तो उसकी तस्दीक ही नहीं कर रहा ज़बान से जो कह रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा हम बेमोमिनीन, ये मोमिन है ही नहीं, ऊपर से कह रहे हैं अंदर से मोमिन ही नहीं है, ये हैं चक्करबाज। तो इसलिए जो है ना उनके चक्करबाजी को अल्लाह ताला ने शो कर दिया कि ये लोग हैं धोखेबाज। युखादिउन अल्लाह, ये धोखा देते हैं, मुझे भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि दिल में तो आए नहीं कुछ इनके, शो कर रहे हैं, ज़बान से कर रहे हैं और दिल में है नहीं इनका। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ने ईमान वालों को बता दिया कि ये ऐसे लोग हैं, इनसे बच के रहना है। वमा यखदऊना, बल्कि ये धोखा किसको दे रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को दे रहे हैं। वमा यशउरून, इनके अंदर शऊर ही नहीं है, उसका सेंस ही नहीं है, उसकी अक्ल ही नहीं है, वो भी अल्लाह इनकी ले लेता है जब बंदा इसी पर ही कायम रहता है। तौबा इस्तगफार कर ले तो और बात है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा इस्तगफार करके ईमान में दाखिल हो जाए, इस्लाम में दाखिल हो जाए, सही मुसलमान बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उनके दिल को, जो दिल ईमान की तस्दीक नहीं कर रहा, उसको अल्लाह ने बीमारी करार दिया है कि बंदा जो दिल ईमान कि यानी ईमान जो है उसकी तस्दीक, मैंने अर्ज़ किया ना, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जो ज़बान से इकरार हम करते हैं, दिल उसकी अगर तस्दीक करता है ठीक है, नहीं करता तो दिल बीमार है, तो बीमारी है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्योंकि जो दिल के बीमार हैं, इनका दिल बीमारी वाला है। और क्या है, फसादा मुला हो मारा, फिर अगर उसी पर वो कायम रहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बीमारी को बढ़ा देता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, मरेंगे तो क़यामत में भी वो उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। क्यों, बिमा कानू यकसिबून, झूठ बोलते थे, ज़बान से कुछ और है, अंदर दिल में कुछ और है। तो ये बात है, तो धोखेबाज है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने दिखा दिया, असल में बात ये होती है, जो काफिर होता है ना, वो होता है ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है ये काफिर है, लेकिन जो मुनाफिक होता है ना, वो अंदर का काफिर होता है। उसके बाहर से सारा कुछ मुसलमानों जैसा नज़र आता है, लेकिन उसका अंदर कुफ्र होता है, अंधेरा होता है। कुफ्र का मतलब क्या होता है, अंधेरा है ना, रोशनी है नहीं उसमें, क्योंकि वो ईमान ही नहीं है, दिल तस्दीक ही नहीं कर रहा, दिल वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है ईमान, उसकी ईमान की किसी बात पे। तो इस्लाम जो है, वो जो ज़बान से बंदा कहे, दिल भी उसकी गवाही दे, तब ईमान बनता है, क्योंकि अल्लाह तो दिल को देखता है ना। तो इसलिए दिल पर भी हमें गौर करना है, जब हम नमाज पढ़ें, नेक काम करें, अच्छे काम करें, हमें ज़बान और दिल दोनों पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि हमें अनेक काम करते हुए ज़बान को भी देखना चाहिए, दिल को भी देखना चाहिए। कहीं हम कहीं खिदमत कर रहे हैं, किसी किसी की पैसे दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं हम शोबासी तो नहीं कर रहे, रियाकारी तो नहीं कर रहे, हवा तो नहीं अपनी मार रहे, कहीं फ़ख्र गुरूर तकब्बुर तो नहीं कर रहे। ये दिल को भी देखो कि दिल क्या वो बीच में हवा आ रही है, गुरूर तकब्बुर कर रहा है। ऊपर से भी देखो, अपने आप को भी देखो, ज़बान से भी जो बात कर रहे हो उसको भी देखे बंदा अपनी, और अंदर दिल की कंडीशन भी देखे। तो क्योंकि उस वक्त अगर ज़बान और दिल एक साथ होता है ना, तो वो सदका खैरात जो भी देता है कबूल हो जाती है। अगर दिल कुछ और बीच में है, उसमें गरूर है, तकब्बुर है, हवा है, दिखावा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो चाहे आप ज़बान से या सामने करोड़ों रुपए के माल दें, कुछ भी दें, वो काबिल कबूल होता ही नहीं है, क्योंकि दिल तो कुछ और है।
तो बात तो ये है ना, उसमें तो गरूर है, तकब्बर है, कोई और गंद है। तो वो गंद वाला दिल जो है वो अल्लाह को तो कबूल नहीं है। अल्लाह जब आप कोई नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला आपके काम को नहीं देखता, दिल को देखता है कि दिल से आप वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें क्या करना है, दिल की तरफ तवज्जो करनी है। और दिल जो है वो जब भी कोई नेक काम करें, हम दिल को देखना है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उस पे किसी किस्म का कोई ख्याल ना हो, कोई बात ना हो, क्योंकि अल्लाह शिरक को पसंद नहीं करता। किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करता जो शिरक लाने वाली हो। मुनाफिकों में यही बात है। अल्लाह जब उनके दिल की तरफ नज़र करता है ना, तो अल्लाह उसमें ईमान नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो ईमान तो ज़बान से इकरार के बाद दिल से उसकी तस्दीक है, और दिल तस्दीक ही नहीं कर रहा होता तो अंधेरा ही होता है। तो इसलिए हमें अपने अंधेरे को दूर करना है। अगर हमारे अंदर भी मुनाफिकों जैसी कोई ना कोई बात अगर है, तौबा इस्तगफार करके उसको निकाल दें, और हमेशा नेक काम करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, रोज़े रखते हुए, दीन के काम करते हुए, हर काम में ज़बान और दिल को साथ साथ देखें कि जब भी नेक काम करें क्या है वो उस पे कायम है। और मोमिन जो होता है उसका तो हर अमल जो होता है, हर काम जो होता है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होता है, क्योंकि उसका चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना हर किस्म का। तो इसलिए हमारे हर काम में, हर बात में, हर वक्त, हर लहजा जो है, ज़बान और दिल की तरफ नज़र रखनी है। और जो हकीकत हाल दीन की है, जो हमने हासिल किया है, जो हमने दीन को समझा है, उसको और समझें, मुकम्मल दीन समझें, और फिर उसको अपने जिस्म के आज़ा की हरकत पर अप्लाई करें, कि जिस्म की हरकत और जिस्म के अमाल जो हैं, वो जो ईमान हमने ज़बान से इकरार किया, इकरार बिल लिसान, और दिल ने उसकी तस्दीक की, तस्दीक बिल कल्ब, तो उसी को अपने जिस्म के आज़ा पर लागू कर दें, ताकि जिस्म के आज़ा वही अमाल करने में मसरूफ़ हो जाएं, और हर हरकत जो जिस्म की है वो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक हो जाए, तब ही जाकर बात बनेगी, वरना काम खराब है। इसलिए कोशिश करनी है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आमीन।